Seven things that I learned in 7 years in Canada. This is specifically for French students, but ये सिर्फ French students के लिए नहीं है, ये मेरे दोस्तों के लिए, because what I feel like कि people who are learning French, they are indirectly my friends, और they are someone with whom I can connect with, because मैं एक सेम ही जर्नी पे था जब मैंने फ्रेंच सीखनी स्टार्ट की. I was on my work permit, and work permit पे I didn't have a lot of pressure in the beginning, but as the time went by मेरा बहुत ही pressure increase हुआ था, because I was I was after 12th. मैं कनाडा में 12th के बाद आया, एंड आई फील कि अगर मैंने फ्रेंच सीखनी स्टार्ट ना की होती एंड एंड ना की होती, ऑब्वियसली स्टार्ट तो सब कर रहे थे, बट अगर फ्रेंच ना सीखी होती, आई वुड नॉट बी इन कनाडा, और आई वुड बी इन अ वेरी बैड प्लेस. एंड I know the worth of being in Canada, because I have seen how my life have evolved around, how it has changed, and how much opportunities it has given me, how much of a mental clarity it has provided me. I personally feel like Canada is a place जहाँ पे if you have something, if you are passionate about something, if you want to do something, no one is there to judge you. Whereas इंडिया में ना आप देखोगे कि बहुत ही बार there are a lot of judgments around, because of friends, because of environmental, or I would say social factors. There are a lot of judgments जो आपको मिलती हैं, जिसके कारण ना you are never able to fully explore yourself. But what I feel is कि Canada is a homeland away from my homeland, which has given me so much of that exposure and the ability to go above and beyond my horizons. मुझे पता भी नहीं था कि how much potential I had. Having this different lifestyle, having this different openness in trying new things is something which I learned only being in Canada. So आज मैं ये 7 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने 7 साल में सीखी of being in Canada. और this is for French students, okay, but ये सबके लिए ही है. If you are learning French, I feel like कि we both have a connection, because I was in the same shoes as you, and as your as your brother who is trying to improve himself, and also who is trying to, or who thinks that you also improve. आप अगर ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, नॉट ओनली आपकी फ्रेंच लर्निंग बेटर होगी, बट आपकी ओवरऑल लाइफ भी बहुत इंप्रूव होगी. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव. माई ओपिनियन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अदर्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम माइन. ओके, सो सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी है वो है कि कनाडा में ना नो वन इज कमिंग टू सेव यू. जो भी आपको डिसीजंस बनाने हैं अपनी लाइफ को लेकर, वो आपने खुद बनाने हैं. डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपको बेस्ट, आपके पेरेंट्स तो आपका बेस्ट चाहेंगे ही, लेकिन आपके पेरेंट्स के अलावा देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू थिंक द बेस्ट फॉर यू. They only think the best for you up until you are struggling, but once you stop struggling, once you are at the point where you do not have enough mental space, because you are so much indulged into something that you want to do, at that point people are nowhere near, they are not there to support you. I have an example which I would like to share. You know, when I was learning French, मेरे बहुत ही सारे ऐसे friends थे, like some of friends तो थोड़े बहुत ही थे, but उनमें से there were few friends with whom I was like, I always used to meet and say to them, I'm learning French, and then they would say, oh, okay, French तो सीख रहा है, but what will you really do? Because French ऐसा तो नहीं है कि French सीख लिया और तेरी PR हो गई. And that was back in 2021, 2022, जब लोगों को ज़्यादा French के बारे में पता नहीं होता था. And at that point, the only thing I was looking for was a support, or just like a psychological or mental support, where I can say this to someone and I can listen back कि oh, this is a very good decision, I think you should continue it, I think तुझे ये seriously करनी चाहिए, and who is there to just push me a little bit harder. But I feel like कि वो ज़्यादा मुझे नहीं मिला, and I shouldn't also be expecting that. But at the same time, I should also understand कि it is not their responsibility, it is not their duty to make me motivated or to make me realize कि is it good or not. I have to weigh all the pros and cons of something जो मैं करना चाहता हूँ, and at the end of the day I have to make a decision based on myself only, and I have to trust my intuition. मैंने कनाडा में एक चीज रहकर कनाडा में रहकर एक चीज इतनी ज्यादा सीखी है ना, कि वो ये है कि फॉलो योर इंट्यूशन. अगर आपके इंट्यूशन को लग रहा है यू विल बी एबल टू डू इट, यू कैन डू इट. डू नॉट लिसन टू द आउटर वॉइस. आई मीन, this is a very genuine advice. Do not listen to any outer voice, because everything which is every voice which is apart from your inner voice is just a noise. It is not a voice, it is just a noise. So please make sure to follow your instincts. Nobody is coming to save you. You have to think and trust in your decision,
and take the decision accordingly. Okay, second thing is ki the people that you will spend time with, they are going to decide your future, not directly, indirectly, because no, everybody knows this ki you are what you spend, you are with whom you spend time with, or like the whatever five friends you spend most time with decides your future and stuff like that. And that is actually true, because your friend circle is your psychological state. Okay, आप काम पे जा रहे हो, काम पे तो यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स, एंड देन आप घर पे आ रहे हो, घर पे what you can do with yourself is one thing, but apart from that, what types of conversations you are having with friend, what is the mentality of your friends, that is going to dictate a lot कि आपकी long term thinking कैसे बनेगी. अगर आप घर पे आ रहे हो, या let's say if you're meeting your friends and you guys are wasting time into just okay video games खेल ली, पार्टी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, that is not something, that value of that relation is not really there. Why? Because you are indulging into short term pleasures and you're not really working on improving each other, jiske karan they're not really considered your friends. They're just considered, those people are being considered, they should be considered as people, those whom you can spend time with, but not a quality time. This is just passing time, this is not spending a quality time. So यू हैव टू बी रियली रियली पिकी. आई वुड से कि थोड़ा ड्रामा आपके दिमाग में होना ही चाहिए. यू हैव टू क्रिएट अ लिटिल ड्रामा, और यू कैन से आपको थोड़ा चूज ही होना पड़ेगा आपके दिमाग में कि this person is not really with whom I can match my vibe. Yeah, this person is really the one with whom my vibe matches. And I personally feel कि मैं ऐसा बहुत हूँ. I am easily able to understand, like from 3 to 4 after 3 to 4 meets I'm able to understand कि with that person, does my vibe really match or does it not. And अगर वो vibe match नहीं करेगी, then the person को भी समझ आ जाएगा, and then we both are on our ways. Okay, but if the vibe matches, then I have to do the effort to continue and nurture that friendship as well, and make sure that friendship is a good friendship. Okay, so either if you are improving each other, or if you are going in the zone with that person, those friendships are considered as good friendships. Now what do I mean by going in a zone? ठीक है, देखो ऐसा नहीं होता कि हर एक फ्रेंडशिप में आपको इम्प्रूवमेंट ही चाहिए. That's not the way to think. अगर आप ऐसा सोच रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर वेरी जजमेंटल रिगार्डिंग योर फ्रेंडशिप्स. आइदर देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट और देयर कैन बी रिलैक्सेशन. इफ यू हैव अ फ्रेंड जिसके साथ आपको बात करके बहुत अच्छा और बहुत ही ऐसा फील होता है कि ही इज नॉट देयर जजिंग यू, एंड ही इज देयर जस्ट टू लिसन टू यू एंड जस्ट act as a psychologist, unofficial psychologist for you, that is even a worthier friendship than a friend who is just trying to improve you all the time, because these two things are very very different. So that is something which I recommend, that these two types of friendships are the most quality friendships. Uske ilawa, if you guys are just having fun partying, for short term it works, but for long term I wouldn't recommend it. ठीक है, लेकिन अगर आप पार्टी और एंजॉइंग अगर आप उन्हीं फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो जिसके साथ आप डीपर कॉन्वर्सेशंस भी कर रहे हो, या फिर जिसके साथ आप सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी भी कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग. ओके, नाउ let's come on to the immigration side a little bit as well, and coming on to the language side of Canada. From past 5 to 6 years, a lot has changed in Canadian immigration. ऐसा होता था कि ठीक है, माइंड स्टेट कैसी होती थी सबकी कि हाँ भाई कनाडा में आ जाओ, पीआर हो जाएगी, एंड एक बार आप कनाडा में आगे पीआर हो गई, ठीक है. एंड इंग्लिश में आपको गुड स्कोर लाने हैं, इंग्लिश में आपको CLB 9+ वो 9 बैंड्स हैं, जो भी बैंड्स होते थे वो लाने हैं चारों मॉड्यूल्स में. बट इंग्लिश इज नॉट द थिंग एनी मोर. इंग्लिश इज नॉट इनफ एनी मोर. अगर आपको कनाडा में अपनी पीआर सिक्योर करनी है, एंड इफ यू वांट टू हैव अ हायर एंड बेटर चांस ऑफ गेटिंग पीआर, आपको मेक श्योर करना होगा कि आप फ्रेंच भी सीख रहे हो. सो अगर आप स्टडी परमिट पे हो या स्टार्टिंग पे हो वर्क परमिट पे, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, फ्रेंच सीखना ईजी है. ईजी एज इन ऐसा नहीं है कि चलो एक हफ्ते पढ़े आ गई, वो ईजी नहीं मैं कह रहा, बट इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक, विच मेक्स इट ईजियर देन वट यू थिंक. ओके, कोई भी चीज ईजी या डिफिकल्ट नहीं होती. कोई भी चीज का ना एक परसेप्शन होता है कि आप कितना डिफिकल्ट सोचते हो कि वो थी, या कितना इजी सोचते हो वो थी. अगर किसी चीज को आप इजी सोच रहे थे लेकिन वो उससे डिफिकल्ट निकली, दैट मीन्स कि दैट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट देन व्हाट यू थॉट. अगर आप
कोई चीज को डिफिकल्ट सोच रहे थे, लेकिन जब आप करने बैठे वो इजी हो रही थी, इजियर हो रही थी देन व्हाट यू थॉट, देन दैट मीन्स कि इट्स इजियर देन व्हाट यू थिंक। सो फ्रेंच का भी यही है, आपको लगेगा बहुत कि हाँ ये डिफिकल्ट है, वाई बिकॉज ओ फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ रोमांस लैंग्वेज, सो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। नो, आपने जो भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जब सुना हुआ है आप वो निकाल दो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि डिफिकल्ट नहीं है, कई कई कंपोनेंट्स डिफिकल्ट होंगे, ठीक है, बट वो सब चीजें निकाल दो और जस्ट आप सीखना स्टार्ट करो, आप देखोगे कि इट इज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट। तो जस्ट स्टार्ट। अगर अगर लाइक द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फ्रेंच वाज when you were born, okay, the second best time is today, okay, so आज आप सीखना स्टार्ट कर दो, start with very small things, start with basics and you will be fine, because in the long run, during your work permit जब आपका PR का टाइम आएगा, इंग्लिश विल नॉट बी इनफ एनीमोर। टीयर 0 1 2 3 वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको फ्रेंच भी चाहिए रहेगी, अगर आपको बहुत क्विकली पीआर लेनी है, अदरवाइज आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत ही और टाइप के तरीके निकालने पड़ेंगे टू गेट योर पीआर, ओके। फोर्थ थिंग आई वांट टू मेंशन इज कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी एवरी टाइम, एवरी टाइम। दिस अगेन आई विल गिव एन एग्जांपल थ्रू फ्रेंच। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं फ्रेंच सीख रहा था उस टाइम पे देयर वर अ लॉट ऑफ मोमेंट्स जहां पे मेरे को ऐसा होता था कि ओ यार आज तो मैं 8 घंटे बैठ के पढ़ लिया। मैं खुद को बहुत ही पुश करता होता था और बहुत ही ऐसे प्रेशर में खुद को कहता होता कि आज तो मैं इतना 8 घंटे या 7 घंटे बैठ के पढ़ूंगा ही। और वो मेरी पूरी फ्रेंच लर्निंग में ना सिर्फ 3-4 दिन ही ऐसे हुए हैं जब मैं एक्चुअली 8 घंटे बैठ के पढ़ा, 7 घंटे बैठ के पढ़ा और पूरे प्रोडक्टिवली 7-8 घंटे बैठ के पढ़ा। लेकिन वो आपका रोज रोज कभी नहीं होगा। मैंने ये क्यों किया, जस्ट वांटेड टू टेस्ट माय लिमिट्स की वेयर आई कैन रियली पुश। क्योंकि अगर आप एक दिन 8 घंटे बैठ के पढ़ लिए तो आप रोज आप 2 या 2.5 घंटे बैठ के तो पढ़ ही लोगे, दैट विल फील वेरी इजी। सो व्हाट आई फील इज की इंटेंसिटी डज नॉट मैटर। ऐसा नहीं है कि एक और इशू मैं आपको बताता हूँ कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू पुश कि हाँ आज तो मैंने इतने एक्स आवर्स पढ़ने ही हैं, that day I did not. I used to feel a bit more fatigued. I used to feel a little bit more resistance to learn the language. लेकिन जब मैं just बैठता था कि okay, आज I'll just study whatever I can. I have some time. I'll try to use it as productively as I can. So I'll just study something. उससे क्या होता था कि एक मोमेंटम ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाती थी एंड दैट वुड जस्ट bring me in the flow state where I just want to keep on continuing the practice when I've, let's say for example I've started reading, ठीक है, तो वो एक आर्टिकल पढ़ा उसके बाद I was like okay, now I'm getting in the flow, now let's another one, now let's do another one, let's do another one, and then उसके बाद listening में एक मैंने YouTube चैनल खोला and then I used to be like okay ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, चलो this is done, now let's open a different video on the similar topic and then a different video on a similar topic so that I can use only one topic but do more research on that. So इससे क्या होता था कि I used to pick topics which were in which I was interested in, जिसके कारण I did not need to give intensity, but because I was interested in that topic, वो मेरी over the time regular basis पे consistency build up होती रही, which made a huge progress. आप believe नहीं करोगे, अगर आप एक month या एक महीना, 4 weeks अगर आप continuously बैठ गए, and after that if you check back your progress कि आपने एक महीने में क्या किया, you'll see a huge difference. Stop analyzing your progress on daily basis or even on weekly basis. एक दिन, 2 दिन, एक वीक में आप क्या ही देख लोगे, ठीक है। आपको एटलीस्ट एक मंथ के बाद खुद को एनालाइज करना चाहिए कि वेयर डू आई स्टैंड नाउ आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, डोंट वरी अबाउट इंटेंसिटी। सम डेज विल बी मोर इंटेंस, सम डेज विल बी लेस इंटेंस, बिकॉज ये आपके दूसरी चीजों पे भी डिपेंड करता है। कैन यू फोकस इन स्टडिंग डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स कि क्या आपकी स्लीप पूरी हुई, क्या आपका न्यूट्रिशन सही था। देखो अगर आप छोले भटूरे खा के बैठ गए, आलू पराठे खा के बैठ गए, हो गई आपसे पढ़ाई, ठीक है। अगर आप 4 घंटे 5 घंटे की नींद पे हो फिर तो हो गई आपसे पढ़ाई। अगर आप 8 घंटे की हार्डवर्क लेबर शिफ्ट लगा कर आए हो फिर तो हो गई आपसे पढ़ाई। सो वो चीजें आपको प्लान आउट करनी पड़ेंगी। फ्रेंच लर्निंग हैज टू बिकम अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, ठीक है, और उसको आपको प्रायोरिटी पे रख कर ही चलना पड़ेगा। एंड हाउ यू कैन प्रायोरिटाइज, हाउ यू कैन एफिशिएंटली स्टडी फॉर दैट 3 hour चंक, आपको उसके लिए आपकी दूसरी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। आपको प्रॉपरली अपनी स्लीप कंप्लीट करनी पड़ेगी, अच्छा फूड खाना पड़ेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स मैटर मोर देन लर्निंग फ्रेंच। बिकॉज अगर आप आधी स्लीप में बैठोगे तो आपका वो फ्रेंच
नेचुरली आपसे सीखनी चाहिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल, नॉट जस्ट थिंकिंग कि हाँ आज 3 घंटे फ्रेंच, 3 घंटे फ्रेंच, 3 घंटे फ्रेंच. द मोर यू स्लीप, द मोर यू ईट बेटर, द मोर यू हैव फ्रेश माइंड, द इजियर यू विल लर्न फ्रेंच. ओके, इसके बाद टॉकिंग अबाउट द वर्क परमिट आपका इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाएगा ना. ये 5वीं चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने सीखी, यू विल नेवर नो कि हाउ टाइम इज क्लिकिंग बाय. एंड सूनर देन लेटर आपका 1 साल हो गया, सूनर देन लेटर आपका 1.5-2 साल हो गया, एंड देन यू ओनली हैव 1 year लेफ्ट. एंड उसके बाद आप सोचोगे कि यार इतना टाइम हो गया एंड 1 साल में अब मैं फ्रेंच कैसे करूंगा. सो दैट इज वाई मैं आपको वो स्टार्टिंग से ही बताना चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो. स्लो इज बेटर देन नन, नॉट एनी प्रोग्रेस. ठीक है, सो डू समथिंग बट कीप ऑन डूइंग इट. अगर आप वर्क परमिट के फर्स्ट ईयर में हो, अभी भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो. अगर आप लेट्स से सेकंड ईयर की भी स्टार्टिंग में हो, तो भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो. बिटवीन 9 to 10 months यू विल बी एबल टू गेट डन विद योर टफ एग्जाम. अगर आप इंटेंसली पढ़ रहे हो, लाइक कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, नॉट इंटेंसली. ठीक है, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हो आप अपने वर्क परमिट पे, देन यू हैव टू पिक अप पेस, यू हैव टू बिकम मोर सीरियस. आप प्लीज खुद को थोड़ा सा खुद पे हार्श होने लग जाओ. ऐसे नहीं कि हाँ फ्रेंच ये तो हमारे बस की बात नहीं है. क्यों बस की बात नहीं है? दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा खुद को पुश हार्ड भी कर रहे हो इन ऑर्डर टू लर्न इट. ठीक है, इसके बाद okay, so one more thing that I learned, it's sixth point, I guess. Sorry, there was a short disturbance. Actually, I forgot my next point. So now I have written it down. Sixth point I want to talk about is solitude. Solitude is one of the best things. I personally feel that the more you are alone, the less you are involved with friends, the less you are involved with other people, going outside a lot and stuff like that. The more you are alone, the better it becomes your overall life. I feel like you have more mind space. Now this is my personal opinion. Some people are more social, they like to stay out with friends, but I also want to mention that it is very draining, mentally draining, to be able to connect with friends on regular basis, and then just expecting कि मैं फ्रेंच भी सीख लूंगा और बाकी अपनी लाइफ को भी improve कर लूंगा. What I personally feel is कि you do need about minimum 3 hours on regular basis of your solitude time where you are only doing something which you enjoy. Now this does not have to be French. अगर तो French है तो वो भी करना है, और अगर आप कोई चीज enjoy करते हो वो भी आप थोड़ा उसमें hours दोगे. लेकिन generally speaking this is about life. अगर आपको लाइफ में कुछ भी ऐसा है जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, you still need to give. I believe कि I like to do it extreme, which is close to 3 hours, but I personally feel कि at least 1.5 hour वो आपको daily solitude time तो देना ही पड़ेगा, जिसमें और देना चाहिए for your mental, for a good mental health, I would say, and for a good balance in your life, so that you can stay more sane and you don't feel कि ये life का purpose क्या है and ये सब questions आपके दिमाग में ना आए. उसके लिए you have to give 1.5 to 2 hours to your own self, जहाँ पे you're sitting and you're thinking about, you're not sitting and thinking about what to do, but जो भी आप चीज करना चाहते हो उसको बहुत ही लॉक इन करके आप उस पर काम कर रहे हो. Okay, I'll be giving an example. So I feel the best in the mornings. जब मैं सुबह सुबह उठ के like 6:30 when I take a cup of coffee, and then I come into a separate room where I have all of my setup, and when I see कि okay, I have this 7 o'clock to 9 o'clock वेरी पावरफुल चंक, ये 2 घंटे का चंक जिसमें मैं बहुत ही फोकस से पढ़ सकता हूँ. आई हैव अ कप ऑफ कॉफी एज वेल. मेरा फोकस बहुत इंप्रूव हो चुका है, राइट. That is the time where I feel like doing the most creative things, like scripting for YouTube videos, or creating like reels, not creating reels but like planning out the idea for reels. Even though abhi I feel like I can still improve a lot because abhi like my social media game is not too good right now. ठीक है, but those are the things which I can do a lot during this time. And not only this, I would say anything. अब जैसे आपके लिए ये टाइम होगा फ्रेंच पढ़ने का, ठीक है. So the more alone you are, the easier and the better you'll be able to focus on friends. I'll tell you my example, but an example of a lot of my other students as well. Those who have cut out their social life for complete 1 year because they were learning French. Wafa is now an instructor. He used to be as a French student, and he also used to tell this to me a lot of times कि ये पूरा साल मैंने बिल्कुल भी
अपने फ्रेंड से नहीं मिला हूँ, जब भी वो कॉल करते थे आइदर आई नेवर पिक्ड इट अप और आई जस्ट यूज टू कैंसिल अ प्लान कि नो मेरे से नहीं होगा, आप लोग जाओ. एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, not only for friends but for anything. You need to be able to say no. You should learn to say no to the things which either you may or may not want to do, but not for that moment, not for that time, because it won't be correct for you to do that at that time. अगर वो आपके अंदर से तलब हो रही है हाँ कि मुझे जाना ही जाना है, मुझे वो चीज करनी ही करनी है, then that is up to you, like फिर उसमें मैं आपको क्या रोक सकता हूँ. But what I feel is कि आपको still एक ये मसल बिल्ड करनी पड़ेगी that whenever someone invites you, or whenever you have a group of friends or a friends plan, if you're really serious into something in life, आपको वो नो बोलना ही पड़ेगा. एंड दो स्मॉल नोस दे अकाउंट ओवर द टाइम, एंड वो बहुत ही एक बड़ी और बहुत ही एक एफिशिएंट विन बन जाता है. आई गिव यू एन एग्जांपल. देखो, सैटरडे और संडे ये 2 दिन है हफ्ते में, ठीक है, विच आर 2 days आउट ऑफ 7 days. अगर लेट्स से आपको फ्रेंड्स एक दिन आपका बाहर मन कर जाने का कर रहा है, एक दिन आपके फ्रेंड्स आपको बुला रहे हैं, ये 2 दिन एक हफ्ते में हुए, वो पूरे महीने में कितने हुए? अराउंड 8 days. सो आउट ऑफ 30 days, 8 days विच इज क्लोज टू 30%. ओके, वो आप 30% ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते थे. चलो लेट्स से आप अपना जो करना चाहते थे वो आपने कर लिया, अब फ्रेंड्स वाला आपने नो बोल दिया, ठीक है, जस्ट सो दैट यू कैन स्टे सेन एंड लिटिल बिट मोर सोशल. 15%, नॉट इवन 30, 15% आप अपनी एफिशिएंसी रिड्यूस कर दी, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर दैट मोमेंट, ठीक है. लेकिन ओवर द टाइम इट एक्यूमुलेट्स अ लॉट, ठीक है. अब ये 15% या 20% ये आपको ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं लगेगी, बट इफ यू एक्सटेंड इट ओवर द टाइम, ये आपके वर्क परमिट के 1 साल में से आपके ये 2 महीने, 1 से 2 महीने हो सकता है, ठीक है. सो 1 से 2 महीना इज वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है. तो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है. यहाँ पे यू नीड टू बी एबल टू से नो, नॉट ओनली फॉर लर्निंग फ्रेंड्स बट फॉर एनीथिंग, सो दैट यू आर एबल टू excel in that, so that you are able to come in the flow state regarding that thing. Okay, and last thing I want to say is ये थोड़ा ना ये जो point है, I have learned it from Atomic Habits, and this is the amalgamation of 2 points. One is कि you have to change your identity in doing something, and the second thing is कि you have to build a system when you're doing something. So I'll give you an example. So recently I've been much more interested into running, ठीक है, लेकिन ये चीज फ्रेंच में भी अप्लाई करेगी, ठीक है. अब when I'm practicing, when I'm trying to run, rather than saying कि I want to be a runner, or I want to run regularly, or I am running regularly, I should say I am a runner. Okay, because when you change the wordings and when you shift your identity, ठीक है, what happens is कि your mind starts thinking like that person. Okay, so on one hand, let's say अगर आप फिटनेस में इंटरेस्टेड हो, ऑन वन हैंड यू विल से कि आई वांट टू आई वांट टू स्टे हेल्दी, आई वांट टू गो टू जिम, और मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, मुझे कार्डियो वगैरह करना है, आई वांट टू स्टे एक्टिव. ऑन द अदर हैंड यू से कि आई एम अ फिटनेस एंथुसियास्ट, दैट इज व्हाई आई लाइक टू डू वेट्स एंड आई लाइक टू डू कार्डियो. You see how much the perception of yourself changes in your mind. You actually change your identity, जिसके कारण you become more accountable to yourself. You feel like कि हाँ, this has some value in it and I have to do it. Why? Because it is linked to my identity. So if you are learning French, you have to consider yourself. You're not trying to be a French student. You are a French student. You are not trying to clear the TEF Canada exam. You are a TEF aspirant. ओके, सो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा. एंड सेकेंड थिंग जो ये स्टिल 7th पॉइंट में ही है, वो ये है कि आपको खुद क्या जो भी आप चीज कर रहे हो ना, उसके अराउंड एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा. What do I mean by system? It does not have to be a very big system जो आपको फॉलो करना है. It's a very small steps that matters. For example, अगर आप फ्रेंच पढ़ने बैठोगे, ठीक है, अगर आप फ्रेंच पढ़ने बैठना चाहते हो, आपकी फर्स्ट थिंग जो आपके ये स्टडी टेबल है, इसके ऊपर फ्रेंच बुक पढ़ी होनी चाहिए खुली हुई, एंड आपकी नोटबुक पढ़ी होनी चाहिए खुली हुई, ठीक है. और आपके कंप्यूटर में फ्रेंच की टैब्स और जो भी आप आर्टिकल्स हैं, जो भी रिसोर्सेज, अगर आप फ्रेंचिफाई पोर्टल यूज करते हो, वो सारी चीजें तभी खुली रहनी चाहिए. दे शुड नेवर गो ऑफ. Why? Because these small things will create a resistance.
आप ठीक है, आपने लैपटॉप अपना खोला, आज आपका मन था कि थोड़ा-सा फ्रेंच कर लेते हैं। ओह! बट अभी लैपटॉप खोलना पड़ेगा, ये नई विंडोज़ खोलनी पड़ेगी, फिर frenchifyvithvyom.com पोर्टल टाइप करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा। वो ओटीपी आएगा, ओटीपी डालूँगा, फिर मैं ये बुक खोलूँगा, देखूँगा कौन-सा चैप्टर था, फिर मैं ये नोटबुक खोलूँगा, देखूँगा कौन-सी चीज़ थी। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग स्टेप। ओके, आई मीन इट्स अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। ये लग तो कुछ नहीं रहा, ठीक है, बट एक्चुअली दिस इज ऑल्सो समथिंग विच ड्रेन्स योर मेंटल एनर्जी। सो आपको क्या करना है कि आपको जितना हो सके अपनी मेंटल एनर्जी सेव करके रखनी है, सो दैट यू कैन जस्ट जंप राइट इनटू द टास्क, यू कैन ग्लाइड इनटू द टास्क विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब मैं अपनी ये लाइफ में कैसे फॉलो करता हूँ कि आई ट्राई टू, लेट्स अगर मुझे रनिंग करने जाना है कल सुबह, ठीक है, सो आज शाम को या आज रात को आई हैव अ प्रॉपर कार्ब मील, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कल रनिंग करनी है 1.5 घंटा 1 घंटा, तो उसके लिए मुझे कार्ब चाहिए होंगे, तो वो मैं खाऊंगा। ठीक है, अब खा के मैं सुबह रनिंग करने नहीं गया, वो मेरे को लगा कि ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। और दूसरी चीज, आई हैव माई रनिंग शूज रेडी एंड आई हैव माई वो रनिंग वेस्ट रेडी एज वेल, क्योंकि वो जो ऐसे पहनना होता है। सो अगर वो चीजें बाहर पड़ी हुई हैं which I can just grab and then go, it will make my life easier and it will make me do that action easily. So आपको भी ऐसे करना है, ठीक है। डो नॉट, अच्छा ऐसा मत करो, डो नॉट पुट अलार्म्स और डो नॉट पुट एनी रिमाइंडर कि हाँ टुडे 8 AM हो गए, आई वांट टू स्टडी फ्रेंच नाउ। व्हाई? बिकॉज वो आप 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, उसके बाद ना वो जो नोटिफिकेशन है ना, वो आपके लिए एकदम नॉन वैल्यूएबल चीज बन जाएगी। वो रोज नोटिफिकेशन आती रहेगी, जैसे ड्यूलिंगो की नोटिफिकेशन आपको रोज आती होगी, है ना, वैसी वो आती रहेगी एंड यू विल ऑलवेज इग्नोर इट। सो वो नहीं करना। आपको क्या करना है कि आपको वो सारे सिस्टम्स रेडी रखने हैं, अपनी बुक खुली रखनी है, अपनी नोटबुक खुली रखनी है, पेन इधर होना चाहिए ताकि आपको वो ढूंढना ना पड़े। ये सारी आपकी टैब्स हमेशा खुली रहनी चाहिए। बस ऐसे लैपटॉप ऐसे स्लीप पे लगा दिया एंड देन खोल दिया जब जरूरत हुई, ठीक है। तो वो सब चीजें आप जितना इजी बनाओगे, अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना, अगर आपके पास विंडोज है तो वो नहीं होगा, मैकबुक है तो आप ऐसा कर लोगे, बट जनरली स्पीकिंग कि जितना आप अपना प्रोसेस इजी बनाओगे, उतना इजिली यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। ऑलराइट, अब जैसे I'll give you one more example. Recently I want to, I want कि मैं ज्यादा गिटार अपना वापस स्टार्ट कंटिन्यूइंग द प्रैक्टिस एंड मैं रेगुलर थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट्स बजाता रहूं। अब ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। व्हाई हैव केप्ट इट बिहाइंड मी इज बिकॉज अगर मैं देखूंगा, है ना, अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को जस्ट ऐसा होगा कि चलो 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो, आई पिक अप माई गिटार एंड आई जस्ट प्रैक्टिस फॉर 5-10 मिनट्स एंड दैट विल बी गुड इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर डे। अगर मैंने ये गिटार अपने गिटार वो बैग होता है, अगर उसमें रखा होता, तो मैं पहली बात वो मेरी आई साइट में ना होता, तो वो मुझे दिखते ना, मुझे रिमाइंडर ही ना मिलता कि हाँ गिटार एग्जिस्ट भी करता है। दूसरा, आई हैव टू ओपन द बैग, पहले बैग ढूंढना पड़ेगा, फिर बैग साइड पे रखो, फिर गिटार ट्यून करो, देन फिर उसको बजाना स्टार्ट करो। 5 मिनट तो उसी में वेस्ट हो गए। सो दैट इज वाई दिस इज द सिस्टम दैट यू शुड बी क्रिएटिंग एंड आई फील लाइक ये ना पहला पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन दिस इज एट द लास्ट। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वीडियो की लास्ट पे है पॉइंट। सो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो देन दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं आपको यही 7 पॉइंटर्स बताना चाहता था। They are not in any order, and these are my 7 things that I learned in Canada after being here for 7 years. So I'll see you in the next one.